डिवाइड हो रहा है? What will be same for the three capacitors? पोटेंशियल डिवाइड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा, करंट सेम होगा. करंट होता ही नहीं बेटा इसमें. स्टेडी स्टेट में देयर इज नो करंट इन द सर्किट. इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर विल बी सेम. लेट्स सी कैसे सेम हुआ. सपोज क्यू चार्ज इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल. ठीक, तो वो क्यू चार्ज यहाँ इस प्लेट पे पहुंच गया. As a result of induction, minus Q charge is induced on this plate, right? Confuse मत होना, actually अंदर वाले plate पे, अंदर वाले surface पे plate के. Minus Q induced in this plate, and Q plus Q is released from this plate. Plus Q again goes to this plate. Then, as a result, minus Q will be induced in this plate, and plus Q will be passed to this plate. Minus Q is induced in this plate and plus Q goes into the cell. Right? So this is how charge. कौन से मटेरियल का बना रहता है सर? क्या चीज? कैपेसिटर कौन से मटेरियल का बना रहता है? बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछा बेटा, लेकिन बहुत गंदा लगा सुन के. क्या था ये? अरे कैपेसिटर कंडक्टिंग में मटेरियल का, ये दो कंडक्टर्स हैं. If it is a parallel plate capacitor, then these are two conducting plates. नहीं तो इंडक्शन कहाँ से होगा? इतना सारा पहली बार ही बोला था मैंने. Two conductors kept close to each other forms a capacitor. अब इनके बीच में बाद में कुछ मटेरियल डालेंगे जो अभी तक सिलेबस में आया नहीं. वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. तो नेक्स्ट तो वो तो दो कंडक्टर उठा के रख दिया. That makes a capacitor. So ये हो गया ना. Naturally, charges are same, capacities are different, voltage gets divided. So voltage across the plates of this capacitor is V1, across this is V2, and across this is V3. So naturally, total voltage V will be sum of V1, V2, and V3. So V is equal to V1 plus V2 plus V3. Is it clear? Yes. Okay. So V1 plus V2 plus V3. Now, in terms of charges and capacities, what will be value of V1, V2, V3? In terms of charges and capacities, V1 क्या आएगा? Q by C. Q by C. Q by C1. So this is Q by C1. Across this is Q by C2. Across this is Q by C3. ये तीनों का सम. V क्या होगा? Suppose this is a capacitor of capacity CS and is connected across V volt. Now, CS by Q. So same charge is drawn if it is equivalent capacitor. So same charge Q is drawn from this cell Q, which gets distributed on the plate. Plates पे ये distribution है Q and minus पे. So Q will V will be what? Q by CS. So Q common and cancel. 1 by CS is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. This is expression for equivalent capacity of capacitors connected in series. Series में अगर लगे होंगे तो ये formula आएगा capacity. Okay, आ रहा है समझ में? So 1 by CS is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So capacity here is reducing or increasing? Reducing. Capacity here is decreasing. See, अगर 4 और 4 होता है तो 1 by 4 plus 1 by 4 is 2 by 4. That is 1 by 2. तो reciprocal या तो 2 हो जाएगा. So capacity यहाँ पे decrease हो जाती है. तो पहला स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बोलूँ कैपेसिटी डिक्रीजेस. कैपेसिटी इन सीरीज डिक्रीजेस and is lesser than the lowest one. Capacity in series decreases and is lesser than the lowest one.
सबसे छोटा कैपेसिटी का जो कैपेसिटर लगा होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी उससे भी कम आएगी. So capacity in series decreases and is lesser than the lowest one. सबसे छोटे वाले से भी छोटी कैपेसिटी आएगी. Okay. Then next, charge appearing on each capacitor, appearing on each capacitor is same. In series, charge appearing on each capacitor is same. सब में same जाएगा, right? Voltage will get divided. क्या होगा रेशियो वोल्टेजेस डिवाइड होने का? Voltage gets divided in the ratio of, in which ratio? किस रेशियो में डिवाइड होगा वोल्टेज? See, there are 3 capacitors. Each of them had different voltage V1, V2 and V3. So what will be ratio V1 is to V2 is to V3? V1, V2, V3 का रेशियो क्या होगा? Anyone? Sir, 1 by C1 is to 1 by 1 C2. by C1 is to 1 by C2 is to 1 by C3. In the ratio of reciprocals of the capacitors. Reciprocals of the capacitors. How? Charge same है सब में. Q constant है. Q is same in each of them. So CV, Q is equal to CV is constant. So C is inversely proportional to V or V is inversely proportional to C. So जिस ratio में capacities के reciprocals हैं, वही ratio में voltage divide हो जाएगा. Right? Then equivalent capacity of n identical capacitors, equivalent capacity of n identical capacitors each of capacity C when connected in series is C by n. So equivalent capacity of n identical capacitors, each of capacity C when connected in series is C by n. जैसे 10 10 10 के 5 अगर आपने सीरीज में लगा दिया तो equivalent capacity would be 2, right? So C n capacitors are connected in series, equivalent capacity is C by n. So this is your series combination, right? So 2-4 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर and then next topic. So let's see how to use these ones. एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं ऐसे. So suppose करो this is a cell of 12 volt, this is of 10 microfarad, this is again 10 microfarad, again 10 microfarad, right? Now let's put 12 volt कर देते. This is 12 volt. So there are 3 capacitors, each of capacity 10 microfarad. First one, so the 2 are connected in series. Let's name it as C1, this is C2 and this is C3. The first one, C2 and C3 are connected in series and C1 is connected in parallel across the combination C2 C3. ठीक है, तो C1 को उसके पैरेलल में कनेक्ट किया है. What, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, what is equivalent capacity of arrangement? 15 microfarad. 15 microfarad is answer. How? 10 and 10 in series makes 5. दो जो सीरीज में लगाया आपने 10 and 10, 10 plus 10 becomes 5. Now 5 and 10 are in parallel, right?
5 and 10 are in parallel. So in parallel capacity gets added. So 5 and 10 15 हो जाएगा. So first question was calculate equivalent capacity. Calculate equivalent capacity. So as I said, the C2 and C3, they are pure and pure series combination. So 10 and 10 gives 5, right? 1 by C is 1 by 10 plus 1 by 10, that is 1 by 5. So C is 5 microfarad. So this is 5 and this is 10. 5 and 10 in parallel makes what? 15. So 10 and 5 in parallel makes it 15. So this is 10 microfarad and this is 5 microfarad. This gives 15 microfarad, right? So 10 plus 5 is 15 microfarad. Next. Charge on C1, C2 and C3. Think of charge appearing on C1, C2 and C3. सर C1 पे 120 माइक्रोकूलम और C2 C3 में 60. करेक्ट. C1 पे 120 माइक्रोकूलम कैसे होगा? वोल्टेज क्लियरली दिख रहा है. वोल्टेज क्लियरली दिख रहा है. C1 पे 12 वोल्ट मिलेगा, राइट? एंड कैपेसिटी इज 10 माइक्रोफैराड. तो Q इज इक्वल टू CV. सो Q इज इक्वल टू CV. ऐसे निकाला था कि दूसरे मेथड से निकाला था? वही क्या सर? ओके. सो इसके अक्रॉस वोल्टेज मुझे पहले से पता है, दैट इज 12 वोल्ट. तो देखने की जरूरत ही नहीं है दूसरा मेथड. तो Q is equal to CV. So capacity is 10 microfarad and voltage is 12 volt. So answer is 120 microcoulomb. So charge appearing on C1 is 120 microcoulomb. Now, what is charge appearing on the second one? C2. Charge appearing on C2. Q2. See, voltage drop across these two together is 12 volt. So 6 is पे 6 is पे. So C2 into V2. So 10 microfarad into 6 volt. 60 microcoulomb. वही इस पे 60 तो दोनों पे 60 आएगा. So Q2 and Q3 both are equal to 61. Right? Clear na? The other way of doing same is, what was the net charge drawn? So net charge Q is C into V. The capacity was, net capacity is 15 into V is 12. So this is 180 microcoulomb. The net charge, alternate method, this is alternate. So Q is what? 180 microcoulomb. So 180 microcoulomb charge is drawn from the cell. Now, that charge gets divided among these two branches in what ratio? In the ratio of the capacitors. 10 is to 5, that is 2 is to 3, 2 is to 1. So, इस पे कितना जाएगा? Q1 would be 180 का 2/3. So this is 120 microcoulomb. और इसमें 1/3 जाएगा Q2, and naturally they are in series, so charge will be same on both of them. So 180 into 1/3, that is 60 microcoulomb. So 120 microcoulomb goes in first one and 60 microcoulomb in both of the capacitors C2 and C3. Right? Now, what is work done by cell? The energy spent by cell. If I ask you work done by cell. Sir, 12 by 180. Work done by cell is 12 by 180. मैं थप्पड़ मारना है, कैसी बात करता है रे? थोड़ा सा कैसे देते क्या? ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया तूने? फिर से ध्यान से देखो जरा क्या बोल रहा था. वो 12 by 180 कर दूंगा, सेल मर जाएगा. अच्छा, into 180.
12 into 180, तो 12 into 180 कितना हुआ? 2160 माइक्रो जूल्स। समझा? सी सेल ने किया क्या है? सेल हैज सेंड हाउ मच चार्ज? 180 माइक्रोकूलम चार्ज अगेंस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। So work done is Q into V. So charge drawn is 180 microcoulomb into voltage. Voltage is 12. So 18 into 12 is 2160 microcoulomb or microjoules. So 2.16 millijoule is energy spent by cell. तो सेल ने कितनी एनर्जी स्पेंड करी है? 2.16 मिली जूल। क्लियर है? Okay. Now see. Let us take one more question. ऐसा समझ रहा है। This is 10 microfarad. This is 10 microfarad. This is 10 microfarad. And this is suppose 12 volt. So this is 12 volt. So 10 microfarad, 10 microfarad, 10 microfarad, and this is 12 volt. इसको नाम दे रहा हूँ C1। ये अलग अलग कैपेसिटी करते हैं, सब एक जैसे रखता है। इसको 20 कर देता हूँ, इसको चलेगा। इसको नाम दे रहा हूँ C1। दिस इज क्या? सब 10 ही रख दो ना। अरे फिर डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। ये वो नहीं है ना सीरीज पैरेलल। Now tell me, what is equivalent capacitance? Do you see any two capacitor which are purely in series or in parallel? ऐसा कोई भी दो कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं जो सीरीज में हो और या तो फिर पैरेलल में हो? सर C1 और C3 सीरीज में है। नहीं है, बिकॉज C1 से जो चार्ज निकलेगा वो दो में डिवाइड हो रहा है, C2 और C3 में। Actually nothing, no two capacitors are in series or parallel. ऐसे सम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अभी कैसे करेंगे? समझा? No two capacitors are in either in series or in parallel. कोई भी सीरीज पैरेलल में नहीं है। So ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ऐसे में इजी मेथड क्या है? I'll tell you. जो इजी मेथड है, सेल का दोनों टर्मिनल्स को कुछ वोल्टेज असाइन कर लो। तो 0 and 12 असाइन किया, ठीक है? तो सेल का एक प्लेट पे टर्मिनल पे 0 वोल्ट है, दूसरे पे 12 ना। ये जिससे जिससे कनेक्टेड है सब 0 हो जाएगा। दिस इज 0 और ये क्या कर दिया मैंने? तो शॉर्ट सर्किट कर दिया। सर इधर भी एक कैपेसिटर डालना पड़ेगा। ये 0, ये 0, एक और है। ये तो कितना है सर? 10 है। 20 ले 20 माइक्रो 20 20 10 10। ये 10 का 20 20। तो ये कितना हो गया? ये 0 0 0, राइट? फिर ये कितना हो जाएगा? ये 12 है। ये 12 ऊपर वाला 12 ना, और कोई नहीं। अब ये तीनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, वोल्टेज मालूम है, समझो V BN V हो गया, राइट? हाँ। कुछ फिगर में समझ में आ रहा है क्या बना है? हाँ यार अब करके फिर सुनो, बन रहा है? ओके। ऐसे 3 plates are connected to each other. कौन सा? ये
whatever charge will appear on this plate, and this plate will sum up to 0. सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. वो 3 प्लेट्स जिनका पोटेंशियल V दिख रहा है आपको, वो तीनों पे जो चार्ज अपीयर होगा उनका सम जो आएगा वो 0 होगा. क्यों सर? क्यों? जी सेल से कनेक्टेड नहीं. हाँ सर समझ गया. हाँ, बाहर से कहीं आना नहीं है. इसका ही चार्ज यहाँ जाएगा. समझो इस पे +3 माइक्रोकूलम आया, राइट? एक एग्जांपल. तो यहाँ से -3 निकला होगा, वो इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा. इसमें -1, इसमें -2. तो टोटल तो 0 ही होगा ना. बाहर से कोई चार्ज नहीं आ रहा. ये तीनों प्लेट्स का जो चार्ज है, ये तीनों प्लेट्स पे, इस पे तीनों पे सेम, सॉरी तीनों पे जो चार्जेस का टोटल आएगा दैट विल बी 0. एनीवन जिसको डाउट है स्टेटमेंट में? नो सर. ठीक ना से. ये जो चीज है, इस पे चार्ज कैसे मेजर करेंगे? सी, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस 12 - V है एंड कैपेसिटी इसका 10 है. तो चार्ज अपीयरिंग ऑन दिस इज 10 × 12 - V. इस पे 0 - V × 20. इस पे 0 - V into क्या होगा? 10 है सर, 10 है. 10. ये टोटल 0 हो जाएगा. So result is 12 - V - 2V - V is equal to 0. तो 4V is equal to 12, V is equal to 3. अब सब आ गया. तो ये तरीका होता निकालने का. तो ये 3 वोल्ट हो गया, राइट? क्लियर है? हाँ. ये आया 3 वोल्ट. तो इस पे कितना चार्ज गया? इस पे कितना चार्ज जाएगा? ये 3 वोल्ट है पोटेंशियल, 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस. 90. ये 3 वोल्ट है. डिफरेंस इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए. अच्छा. हाँ. तो डिफरेंस कितना है? 9. तो इस पे कितना गया? 90 माइक्रोकूलम. इस पे कितना जाएगा? 0 नहीं डाला सर. क्या जगह ही नहीं बची यार. इस पे कितना जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस 240. तो इस पे गया 240, इधर पे गया 90. तो टोटल सेल से कितना निकला? 330. मतलब ये सारे लोग मिलके, सब लोग मिलके सेल से 330 माइक्रोकूलम चार्ज निकाल रहे हैं. तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा? नेट चार्ज ड्रॉन बाय पोटेंशियल डिफरेंस. तो Q is 330 माइक्रोकूलम अपॉन 12 वोल्ट. तो कितना होगा? 27.5 माइक्रोफैराड चार्ज. ऐसे करना है. समझा? सर जब आप शॉर्ट सर्किट बोलते हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? मतलब हाँ सर, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा था? अरे यहाँ पे कुछ लगाया नहीं ना, कुछ इधर उधर जाएगा ना. सीधा चार्ज यहाँ से भाग के इधर ही आ जाए. ये हट गया था ना, तो सेल आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया. अभी क्या है वो बताओ सर, इजी में. क्या शॉर्ट सर्किट में होता ही क्या है? वो बेटा नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा. अभी समझाने जाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा. सीधा आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो कोई भी चार्ज इधर उधर जाएगा ही नहीं ना. सी, कंडक्टिंग पाथ से आपने ज्वाइन कर दिया, इधर लगा हुआ रेजिस्टर कैपेसिटर लगा, तो कोई चार्ज इधर क्यों जाएगा? सीधा चार्ज इधर नहीं फ्लो करेगा. नहीं मजा आ रहा. नहीं. ये चार्ज यहाँ लड़ने जाएगा क्या? जब उसके पास रास्ता है, इजी पाथ. अच्छा. हाँ, तो वो सीधा ऐसे जाएगा ना. 10th में अगर याद हो तो, इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में समझाता हूँ ना. 12th में याद हो तो ऐसा एक रेजिस्टर लगा होता ना, अगर टीचर्स बताते अगर ऐसा कंडक्टिंग पाथ होगा तो पूरा करंट इधर से जाएगा, इधर से कुछ जाएगा ही नहीं. तो वही चीज है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, तो करंट इधर जाना ही नहीं है. इधर कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होता रहेगा, उधर उसको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है. तो कैपेसिटर बेचारा बोर हो जाएगा बैठे बैठे ना. तो वो गलती से ये पूरा ओपन रख दिया था. तो ये कैपेसिटर एक पाथ में डाला तब भी जाके वो सम कंप्लीट हुआ. क्लियर? आ रहा है समझ में? हाँ सर.
ठीक है, चलो आई स्टॉप हियर। आज थोड़ा जल्दी स्टॉप कर रहा हूँ, 5 मिनट। नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हो सका तो चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, सिर्फ सम रह जाएंगे थोड़े से। चलो आई स्टॉप। थैंक यू सर। ओके।